minutes to introduce you. Okay, so welcome to KJ's podcast. So today we'll talk about spirituality and we'll be deep diving into spirituality. How does it affect our personal life and professional life? So today we have a guest. So she is an IT professional, multinational companies, and she has influenced many lives through spirituality. She has done teaching into physics, and she has worked in multinational companies, and she has influenced many lives through spirituality. So let's welcome our guest, none other than Dimple Desai, and the founder of Shuddha Desi Gyan. So, yes, ma'am, how are you, ma'am? After so much, I am trying to be calm. after so much struggle, oh my God, I can't believe this can happen. So, कैसे हो, It's ma'am? okay. I'm fine. कैसे? How are you, Kirti? I'm good. So let's talk about our topic today. Why spirituality? Spirituality Q. You tell me, by today's experience, why do you think spirituality is needed? It is needed in any case. Like जब भी हम अभी आज ही इतना बड़ा एग्जाम्पल हुआ, I was just how can this happen? We have given all the lives, all the links of YouTube, and suddenly this is happening. I can't believe. But you said me just be calm and all. Don't panic. And I was so much like tensed, but finally we are here. So Indian what? English will combine. Okay. Yes, So, yes, yeah, you have your first question's answer why spirituality is needed. I think yes, there's ma'am. one more question about uncertainty, which you had asked. This was an uncertain thing, right? We This plan, we was schedule things on time, but everything every right. time things don't work the way we want it to. कभी भी कुछ Exactly. भी हो सकता है. Such So we have to be ready for that. right, And right. to be ready for that, that is when you become more inclined towards spirituality, you can be calmer in such situations. So, yeah, Yes, that is the reason I think because life is uncertain, not just with us, but this can happen with anybody. Even at a right. larger scale, things can go wrong, and they do go wrong. Even on big, big offline stages, when there is live performances on stage with thousands and lakhs of people, things go wrong because life is Exactly, uncertain. So, exactly. and if you're not calm, you cannot handle things. अगर आप calm होते ना आपने 10 मिनट में figure out कर लिया होता. Right, right. That's all. But you Exactly. got very tensed up, and it's understandable because Right. um, it is understandable because you are doing it for the first time, so you are also nervous. So it happens. So it's human to feel all those things. So no problem. We are live here, and let's continue ahead. Yes. And what was your experience about spirituality? And when this spirituality journey started in your life, and how did it impacted your life? And what was your feeling at that time? When did you feel that spirituality? तो आपने 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए. Yes, yes, Thank you, yes. Rahul. Thank you. We need that. Somebody telling us that we are doing well. Okay. So can you ask one question, Kirti? You are ask mixing what, when, where, a lot of things. Yes. Why Question. spirituality? When this journey started? When this journey started. Uh, okay. So when this actually, if I have to honestly answer, in this lifetime, पहले तो देखो, it's in past lifetimes, I'm definitely sure I had started. Otherwise, I wouldn't have this big calling for philosophy and spirituality in this lifetime. Okay. It's wrong to say कि in this age I started, But again, um, when you say spirituality, what do we mean by spirituality? When do it started? Spirituality is basically what I feel is being connected to our own source, right? There is a divinity inside, and if you can be in touch with it at all times, then you are spiritual. And when we are in our childhood, I look at my son. He's very much in connected with his own feelings, his own self. So there is no age when spirituality really starts. If you talk about spiritual practices, the rituals, yes, then you can say, okay, it starts at I started doing this particular ritual, or I started practicing pranayama at this time, or I started doing yoga at this time.
You know what I mean? So rituals, you can say, okay, I started going to temples at this time. I started seriously doing worshipping this particular god at this time. But when you say spirituality, for me, it means being connected to your source, and that can happen anytime, even in your childhood. And more so when you are smaller, you are more connected. As you grow older, you lose that connection with your own self. Okay. When did you feel the most connected? Means, what was your feeling at that time? When did you have the experience of spirituality? Yes, this is the thing which Okay. is. So this is again very personal. Okay. So Yes. I Just would say anything, any example, like about yeah. spirituality. So when I was very small, I think after 12th standard, my father had put me into a yoga teachers training course. Just after I completed my 12th standard. Imagine at that time, right now it's very much trending. That time nobody used to do. So yoga teachers training course, it was a very intensive course. We used to sit in the class for 6 7 hours. And we didn't just do yoga. There was also theory of yoga, Sankhya, yoga, ये सब हमको सिखाते थे. So till imagine for me till 12th standard, I had only studied science, maths, physics, biology, history, geography. Nobody told me about my own self. और 12th के बाद मुझे जब मैंने योगा ज्वाइन किया तब मुझे बताया गया कि भाई मन क्या होता है, विचार क्या होते हैं, विचारों को नियंत्रित कैसे करते हैं, सेंसेस को कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या अच्छे विचार, क्या बुरे, ये सब मुझे 12th तक किसी ने नहीं बताया था. एंड व्हाट इज गॉड, व्हाट इज रियलिटी, ये सारे टॉपिक्स योगा में हम डिस्कस करते थे. तो फॉर मी दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम आई वाज एक्सपोज्ड कि भाई दिस इज द ट्रू नॉलेज. अभी तक जो मैं पढ़ रही थी उससे तो मुझे एक्चुअल रियल में कुछ फायदा हुआ नहीं. ठीक है, एग्जाम में मार्क्स पास हो जाती थी, स्टैंडर्ड आगे बढ़ जाता था, बट एक्चुअल ट्रू नॉलेज इज दैट. तो आई थिंक वो योगा क्लास से वहाँ शुरुआत में, आई वुड से वहां से शुरुआत हुई. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय फादर दैट ही put me into that yoga class at that time. Oh, on that yoga class, you felt the connection of spiritual world. Means you was Yes, introduced to the spiritual world at that time. yes, yes, yes. ओ, तो अगर लाइफ में अनसर्टेनिटीज आती है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइक इमोशनली, मेंटली, लाइक पीपल आर सो मच ड्रेन्ड इनटू दिस थिंग लाइफ में, जैसे लाइफ चाहिए होती है वैसे नहीं होती है. तो क्या स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है हमें ये सारी चीजें ओवरकम करने में? हाँ जी, बिल्कुल हेल्प करती है, बिल्कुल हेल्प करती है. सी स्पिरिचुअलिटी, यू नो व्हेन वी से कि तुम तुम्हारे सोर्स से जब कनेक्टेड हो ना, तो तुम्हारा सोर्स जो है, वेदांत भी कहता है, योगा भी कहता है कि तुम्हारा जो सोर्स है वो बाहरी चीजों से कनेक्टेड नहीं है. दैट ओके. इज द ऑल पावरफुल सेल्फ, बोलते तत्वमसि, जिसको तुम पूजते हो मंदिर में, वही राइट. वही अंश तुम्हारे अंदर भी हो, हर किसी में है. राइट. That right, if when you know that, and that is unaffected by whatever is going outside, and that is complete in itself, वो राइट. पूर्ण है. It is not incomplete. It is our mind which constantly telling us that we are incomplete without this work, or we are incomplete without this person, or we are incomplete without this career. It is ओके. the mind telling us all these things. But inside what we have, the Atman, that is complete. और ये चीज हमको कोई बताता ही नहीं है. बचपन राइट. से लेके बड़े होने तक हम लोग सबको ये सब यही सिखाते हैं कि आपने 12th में इतना नहीं लाया तो ये नहीं होगा, आपने ये करियर नहीं किया तो ये नहीं होगा, आप इतने पैसे नहीं कमाए तो. दे आर ऑलवेज पुटिंग एंड टेलिंग अस दैट वी आर इनकम्प्लीट. तो राइट. वेदांत जो है तुमको सबसे पहले ये चीज बताता है कि यू आर कंप्लीट, सत चित आनंद. एंड तुम्हारा जो एक्चुअल रियल नेचर है वो आनंद वाला है, पर हम भूल जाते हैं ये चीज को. तो व्हेन यू नो दिस फॉर श्योर, तो तुम लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स को इजीली टैकल कर सकते हो, बिकॉज यू नो दैट द ट्रू पावर इज विद यू. दिस राइट. अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स. ओके. व्हेन डू यू फील द ट्रू पावर? ट्रू दैट पावर है. कंप्लीटनेस की फीलिंग कब आती है? लाइक ओनली स्पिरिचुअलिटी कैन गिव कंप्लीटनेस एंड हाउ? देखो, अभी ये जो कंप्लीटनेस फीलिंग वाली है यस. वो सबको अलग अलग तरीके से आ सकती है. ठीक है, अभी किसी राइट. को
आर्ट करके, जैसे कोई पेंटिंग करता है तो खो जाता है बस पेंटिंग में, व्हेन यू आर राइट, लॉस्ट इन दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, तो कंप्लीटनेस वाली फीलिंग उसको तभी भी आती है। कोई होता राइट, है जो खेलने में, जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं, दे डोंट वांट राइट, एनीथिंग, और कोई चीज राइट, मायने नहीं रखती, बस उनको बस वही उसी में मजा आ रहा है। तो राइट, वो आर्ट हो सकता है, तुम पेंटिंग कर सकते हो, तुम लिख सकते हो, कोई किसी को मेडिटेशन में आता है, किसी को पूजा पाठ में आता है। तो फॉर एवरी पर्सन आई फील दैट फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस माइट कम इन डिफरेंट प्लेसेस, सो वी नीड टू फिगर आउट। अब वो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट द सेंसेस। बहुत लोग बोलेंगे पिज्जा खा के भी आई एम फीलिंग कंप्लीट। So you have to differentiate whether it is your senses or whether where you're feeling soulfully connected, whether you're feeling soulfully whole or not. ओके, थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करेंगे, वेयर इज द सोल Um, कनेक्टेड एंड वेयर इज दिस थिंग? Sorry? यस, कैन वी ब्रेक डाउन ऑन दिस थिंग, मीन्स आवर सोल कनेक्शन? हम्म। सोल कनेक्शन सवाल थोड़ा और डिटेल में पूछो कीर्ति। यस, वेयर डू वी फील, लाइक ऐसा कोई मंत्र जिससे कोई हाँ, इनर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं हम, इनर पीस हमें कोई मिल सकता है, जिससे कोई एक मंत्र है जिससे हमें इनर पीस या इनर बिल्कुल, हीलिंग हो? मंत्र मंत्र जाप करने से शांति बिल्कुल प्राप्त होती है। ओके, आई और बिलीव कोई कि एक कर्मा, आई बोले। बिलीव कि कर्मा भी होते हैं और पुनर्जन्म भी होता है। आई बिलीव कि थ्री टाइप्स के होते हैं। एक कर्मा हम खुद के लिए करते हैं कि हम्म, तीन तरीके से आते हैं। हम्म, फर्स्ट इज एक अच्छा इंसान बनने से, दूसरा भगवान में मानने से, और तीसरा कि जब हम मेडिटेशन करें और अध्यात्म को समझे। तो अगर आप कर्मा के बारे में थोड़ा और डिस्टिंक्शन करो कि व्हाट इज गुड कर्मा, व्हाट इज बैड कर्मा, और स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है कर्मा में? देखो कर्म का ऐसे है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, बचपन से तुम जिस कंट्री में बॉर्न हो, तुम जिस राइट, फैमिली में बॉर्न हो, तुम्हारे साथ जो करियर है, जो लोग मिल रहे हैं, जो दोस्त भी बन रहे हैं, जो सिचुएशंस हो रहे हैं अच्छे बुरे, वो सब तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हो रहा है ना? राइट, उसका राइट, हमारे पे इतना हाथ नहीं है, तुम कहाँ बॉर्न हो, कौन से कंट्री में बॉर्न हो, वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट। व्हाट राइट, वी हैव कंट्रोल इज हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन, दैट इज ट्रू कर्मा। कि अभी राइट, हमारे साथ जो हो रहा है, हाउ आर यू रिएक्टिंग टू इट, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, हर चीज में तुम किस तरह से रिएक्ट करते हो, दैट इज योर कर्मा, एंड दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर, कि तुम ओके, आगे क्या होगा तुम्हारे जीवन में, राइट, कैसे है। और तो जस्ट जितना हो सके कर्म को अच्छा रखने की कोशिश करो। एंड आई वुड से कर्मा इज नॉट जस्ट एक्शन, आई ऑलवेज से इन माय वर्कशॉप आल्सो कि कर्मा इज आल्सो समथिंग दैट यू थिंक first, because your thoughts become your action. तो you have to be very careful about your thoughts कि क्या चल रहा है दिमाग में। ट्राई कि किसी का बुरा सोचो भी मत, क्योंकि राइट, तुम बुरा सोचोगे तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे शब्दों में निकलने ही वाला है। एग्जैक्टली, वैसी बात है। राइट। Does spirituality affects karma? Does spirituality affect karma? Of course it affects karma। तुम्हारा बेटर हो जाएगा ना, तुम जितना ज्यादा स्पिरिचुअल हो, तो क्या होता है जब ज्यादा कोई स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में जाता है, अभी तो बहुत टाइप की स्पिरिचुअलिज्म हो गई है, बट आई फील अगर कोई ट्रूली स्पिरिचुअल है, तो दैट पर्सन विल बी वेरी काइंड, दैट पर्सन विल Right, बी वेरी लविंग, दैट पर्सन विल बी वेरी केयरिंग, और वो किसी का भी बुरा नहीं बोलेगा, बुरा ex- सोचेगा भी नहीं। अगर exact- इतने भी कैरेक्टर्स, मतलब समझो कि वो इंसान स्पिरिचुअल है। अब ना ही स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम सुबह 6 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर रहे हो, आई एम सेइंग, ऐसे नहीं बोल रही हो बुरी चीज है, वो अच्छी चीज है डेफिनेटली, बट अगर तुम में ये बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज नहीं आ रही है, ऑफ काइंडनेस, ऑफ कंपैशन, ऑफ एम्पैथी, तो तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, आई फील। right, तो आई exactly, थिंक दिस इज द बेसिक, आई फील। right. Is religious होना और spiritual होना एक बात है या अलग बात है? सॉरी, वापस से बोलना। Spiritual होना और religious होना एक बात है या अलग बात है? And how does it affects? देखो वो इंसान पे डिपेंड होता है, आई फील। मेरे लिए तो फिलहाल दोनों सेम सा ही है,
बट व्हेन यू से रिलीजियस, वो क्या हो जाता है कि रिचुअलिज्म्स आ जाते हैं। और रिलीजन में क्या हो जाता है कि अगर कोई हिंदू धर्म का है तो वो हिंदू गॉड्स पे बिलीव करने लगता है। और फिर दूसरे, वो हिंदुत्व ज्यादा हो जाता है, फिर वो दूसरे गॉड्स पे जाएगा भी नहीं, चर्च जाएगा भी नहीं, और दूसरे रिलीजन के लोगों को फिर अच्छा भी इंसान नहीं समझते हैं वो लोग। तो तुम राइट। ज्यादा रिलीजियोसिटी में चले जाते हो। वो एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। अगर तुम अपने रिलीजन में रह के अगर प्यार से अपने भगवान को वर्शिप कर सकते हो, शंकर पे जल चढ़ा सकते हो, और उसी प्यार से अगर तुम चर्च भी जा सकते हो, तुम्हें किसी और से अगर फर्क नहीं पड़ता है, और अपना रिलीजन बस अपने भगवान से मतलब है, तो आई थिंक यू आर स्पिरिचुअल। बट द मोमेंट यू स्टार्ट क्रिएटिंग दिस डिफरेंसेस एंड दिस हेट्रेड towards other people, then it's not possible. वंडरफुल, वंडरफुल। सो कोई ऐसा मंत्र फॉर इनर पीस, अगर हम्म। किसी को कोई एक मंत्र चाहिए जिससे उसको इनर पीस और इनर हीलिंग मिले। सपोज अभी कोई डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, या फिर कोई भी मीन्स किसी के कोई भी प्रॉब्लम्स है, करियर रिलेटेड, पार्टनर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, तो क्या स्पिरिचुअलिटी उसे हेल्प करती है इन चीजों के लिए? अगर करती है तो कैसे? मनी रिलेटेड, पार्टनर रिलेटेड, ये सब चीजें देखो, स्पिरिचुअल अगर तुम थोड़ी प्रैक्टिसेस मेंटेन करते हो डेली बेसिस, वो तुमको सारे एरियाज में अफेक्ट करेगा। तुम्हारे फैमिली लाइफ में, तुम्हारे रिलेशंस में, तुम्हारे करियर में, वो हर जगह दिखेगा। फिर वो you will be able to handle everything in a better way, um, if you are aligned with yourself. राइट। अलाइंड विद योर सेल्फ, यू शुड बी जस्ट बाइफरकेट इन दिस, मीन्स इसका थोड़ा हम ये अलाइंड करेंगे। विथ योरसेल्फ मतलब जो मैं वही बोल रही हूँ कि तुम तुम्हारे अगर सोर्स से जितना ज्यादा कनेक्टेड हो, कि राइट। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या, व्हेन आई से अलाइंड, जनरली क्या होता है, हम बाहर इतना घुसे हुए रहते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, लोग क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, हमारा इमेज कैसा बन रहा है, और फिर हम अपना काम उनके हिसाब से करने लगते हैं कि अच्छा उसको ऐसा अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसा तरीके से बात करूंगी, उसको ये कपड़े पसंद है तो मैं इस तरीके से ड्रेसअप करूंगी, अच्छा ये फैशन चल रहा है तो मैं ये चलाऊंगी, अच्छा ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है तो मैं इस टॉपिक पे ही करूंगी। तो तुम बाहर के हिसाब से अपने आप को बदल रहे हो। एंड व्हेन यू आर अलाइंड, तो तुम तुम्हारी सुनते हो कि मुझे किस में अच्छा लग रहा है, मुझे क्या बोल के अच्छा लग रहा है, मुझे क्या करके अच्छा लग रहा है, मुझे क्या पहन के अच्छा लग रहा है, मुझे किस टॉपिक पे बात करके अच्छा लग रहा है। तुम खुद को देखते हो, और इसके हिसाब से तुम बाहर की चीजों को अलाइन करते हो। सो दैट इज बीइंग अलाइंड, अलाइंड विथ योर सेल्फ, नॉट अलाइंड विद आउटसाइड वर्ल्ड। व्हेन यूर सेल्फ अलाइंड, हाँ, बस। एस्ट्रली। अभी मेनी पीपल हैव लाइक एंगर इश्यूज, बहुत लोगों को एंगर इश्यूज होता है, लाइक सो हाउ डज स्पिरिचुअलिटी उन्हें हेल्प करेगी उनका एंगर कम करने में, और क्या प्रैक्टिसेस होगी ऑन हाउ कैन दे रिजॉल्व? एंगर, सो आई फील, ये जितने भी इमोशंस है ना अपने, आई फील, मैं इमोशंस को ना अभी रिसेंटली आई हैव रियलाइज्ड विथ माय ओन एक्सपीरियंसेस कि हम ना इमोशंस को बुरे अच्छे में डिवाइड करने की वजह से वी सप्रेस देम। अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, अरे मुझे सैडनेस फील हो रहा है, अरे नहीं फील होना चाहिए, अरे मुझे एंजाइटी फील हो रही है, अरे तो कोई बहुत बुरी चीज है, अरे मुझे डिप्रेशन हो रहा है, अरे बाबा क्या हो रहा है मेरे साथ, वी फियर इट। तो मैं बोलती हूँ यार, ये सारे, तुम हैप्पीनेस आते है तब तुम सवाल पूछते हो, तुमको जब एक्साइटमेंट आती है, जब तुमको जॉय आती है, तब तुम सोचते हो कि अरे बाप रे मुझे जॉय आ रहा है, अरे मुझे इतना एक्साइटमेंट है। वी डोंट क्वेश्चन इट, वी एंजॉय इट। तो हमने इमोशंस को भी डिवाइड कर दिया अच्छा बुरा। तो मैं बोलती हूँ व्हाई कांट वी जस्ट सी देम एज इक्वल। हैप्पीनेस आ रहा है ठीक है, उसको देखो एंजॉय करो, सैडनेस आ रहा है देखो एंजॉय करो, अच्छा एंगर आ रहा है उसको देखो एंजॉय करो। लेट ऑल इमोशंस कम एंड लेट ऑल द इमोशंस गो। Don't judge your own emotions. That means you are a human, and you can experience a diverse range of emotions. And that just means that you are alive, that you can see and feel all these things. Then feel it. But इसका मतलब ये नहीं कि अगर गुस्सा आ रहा है तो तुम सामने वाले पे गुस्सा कर रहे हो. That should not happen.
अगर गुस्सा आ भी रहा है तो फाइंड अनदर वे टू रिमूव इट. Go for a walk outside, do journaling, try to understand, listen to music. कुछ भी करो, but don't hurt somebody in your emotions. But यस, also बिकॉज don't suppress it. पीपल यूजुअली गुस्सा करते और ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कितना बुरा लग सकता है, उनके हाँ जी, इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को हर्ट हो सकता है. सो जी यस. बिल्कुल. तो जैसे ही तुम्हें कोई इमोशन आ रहा है, सैडनेस आ रही है, एंग्जाइटी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, जो भी है, पहले तो उसको एक्सेप्ट करो, भागो मत उससे. क्या हो रहा है ना, हम लोग अरे मुझे बहुत सैड फील हो रहा है, लेट मी डाइव इनटू वर्क, काम चालू करके बैठ गए, है ना. या तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं फटाफट कुछ 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 कर रहा हूँ, एकदम हाइपर में कर रहा हूँ. तो लिखो, स्ट्रेस हो रहा है तो राइट इट डाउन, ऑर्गेनाइज योर वर्क, किस चीज की वजह से स्ट्रेस कर हो रहा है, समझने की कोशिश करो. बहुत ज्यादा अगर डाउन फील कर रहा है, गार्डन में वॉक करने चले जाओ, म्यूजिक सुन लो, टेक अ शावर. डोंट रन. ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट, वेलकम इट एंड देन रिजॉल्व, एंड वो अपने आप चले जाएगा. फिर तुम एक्सेप्ट करके देखो इमोशंस को, इट विल गो एंड इट विल हील यू. इट विल हील यू. हम जो हीलिंग की बात करते हैं ना, एक्चुअली इफ वी अलाउ द इमोशंस, इट रियली हील्स यू फ्रॉम विद इन. एग्जैक्टली. एंड even whenever we take responsibility of our emotions, that can also, I guess, यस, डेफिनेटली. helps in long run. Do you believe in? जो भी इमोशन आ रहा है ना, हर दिन तुम उठते हो सुबह में एक नया इमोशन. कोई दिन तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, हैप्पी फील होगा, नेक्स्ट दिन उठ रहे हो बहुत उदास हो रहे हो, नेक्स्ट दिन उठ रहे हो शायद बहुत गुस्सा आ रहा है. तो Right. हर किसी को, दैट इज जस्ट अ प्रूफ दैट यू आर लिविंग एंड यू आर ह्यूमन. तो जो भी इमोशन आ रहा है उसको आने दो. इट्स लाइक अ गेस्ट. रूमी कहते हैं, वेलकम ऑल इमोशंस एज अ गेस्ट, एम्ब्रेस देम, ऑफर देम टी. ठीक है, क्या बोलना है तुम्हें आज, एंगर आया है. इमोशंस आर लाइक अ टीचर्स, दे टेल यू समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वेयर यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक. तो अलाउ इट, एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट इट. बट किसी और पे निकालना नहीं है, जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम योर सिस्टम इन अ हेल्दी वे. Right, right. Do you believe in nazar, like energy, negative energy, positive energy? And if you have felt it, any experience if you would like to share? देखो, नजर तो Any बिल्कुल होती है. मैं तो पूरा मानती हूँ, 100% नजर होती है चीज. मैंने मेरे खुद के लाइफ में भी देखा है बहुत बार. आई हैव बीन experience? अ विक्टिम टू इट ऑल्सो मेनी टाइम्स, बट थैंकफुली नाउ इट्स नॉट हैपनिंग. आई Okay. फील तुम जितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते जाते हो, तो नेगेटिव एनर्जीज तुम पे कम अटैक कर पाती है. एक शील्ड बन जाता है तुम्हारे आसपास, क्योंकि तुम हमेशा अपने वाइब्रेशंस मेंटेन कर रहे हो, तुम तुम्हारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो. एंड तुम्हारी बिलीफ और ट्रस्ट और फेथ इतना ज्यादा स्ट्रांग जितना होता है ना गॉड पे, उतनी नेगेटिव एनर्जीज की इम्पैक्ट तुम पे कम हो जाती है. सो द स्ट्रॉन्गर योर फेथ, द नेगेटिव एनर्जीज कैन नॉट इवन कम क्लोजर टू यू. इट्स लाइक दैट. और अगर तुम्हारे मन में डर है, फियर, कि क्या Okay. होगा अगर ऐसा हुआ तो, किसी ने कुछ किया तो, ये ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो नेगेटिव एनर्जीज को एक लूप होल मिल जाता है तुम्हारे अंदर आने का, तुम्हारी एनर्जी शील्ड में. बट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड कि नहीं, भगवान मुझे देख रहा है, कौन कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता. तो एक्चुअली में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा. तो यू हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग फेथ. तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि तुम्हारी एनर्जी को इतने स्ट्रॉन्ग कर दो कि नेगेटिव एनर्जी आ ही ना पाए पास में. Yes, I would like to say whenever we have met once, but your energy and your aura was so strong and so pure. I felt very pure in your energy. I would like to say, like, is it because of spiritual practice or it is obviously you're pure from beginning, but how have you developed this? And I have not developed. It just happens on its own. It's all God given. उनकी ही दया से सब हो रहा है. He only tells me what to think. He only tells me what to do. He only tells me how to behave. It has been him all along, and I have just had faith in him. And एक चीज मैंने हमेशा करी है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, किसी का बुरा नहीं बोला भी. हो सके बहुत कुछ भी हो जाए ना, आई नेवर ट्राई टू हर्ट पीपल. दैट हैज बीन ऑलवेज माई इंटेंशन. नेवर. आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट. ये ना बेसिक वैल्यूज होती है जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसको मैंने वो योगा क्लास किया था ना तब से. उसमें right, अष्टांग योग में आता है यम नियम, जो बहुत पावरफुल है.
यम और नियम मैंने प्रैक्टिस किया है बहुत मेरी जिंदगी में। तो उसमें जो यम नियम है वो कहते हैं कि सत्य, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो मैं जितना भी कितना भी कठिन हो सच बोलना, मैंने कोशिश की है कि मैं सच का ही साथ दूं। भले मेरे राइट। रिलेशनशिप किसी से खराब हुए या कुछ इमेज खराब हो, किसी को बुरा लग जाए उतना भी सत्य नहीं बोलना चाहिए। बट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विथ माई सेल्फ, ऑनेस्टी विथ अदर्स, नॉन स्टीलिंग, ये सारी जो राइट। बेसिक चीजें हैं, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ये सब चीजें अगर तुम कर लो ना, ह्यूमन तुम्हारी वैल्यूज। स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये सब बहुत बेसिक चीजें जिसको लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट एक्चुअली दीज आर द कोर वैल्यूज। ऐसी बात यस। है। हम्म, कोर ह्यूमन वैल्यूज। हाँ जी। राइट, राइट। People are saying question ले लो. We'll just this is going so deep and this is going so naturally and Yes, I'm that's how it liking should be. to. Yes, yes, yes. And You want to so take yes, some questions? राहुल के क्वेश्चंस ले लेते हैं, उन्होंने बहुत सवाल पूछे हैं। okay. मंत्र मुझे जाप में कोई रूल है? मंत्र जाप में एक तो देखो, मंत्र जाप में ऐसा है कि बहुत सारे मंत्र हैं, तो मुझे हमेशा कॉम्प्लेक्स लगता था, तो मैं एक ही मंत्र से आई वुड स्टिक टू विच इज राम नाम। तो सबसे आसान मंत्र है, और यू सी वेयर यू फील बिलोंगिंग टू, तुमको कौन से गॉड की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, और उनका मंत्र जाप कर सकते हो। और अगर नहीं हो रहा तो राम नाम तो हमेशा कर सकते हो, ओम नमः शिवाय है। कुछ मंत्र है जो कोई भी प्रैक्टिस करता है कर सकता है, बीज मंत्र है उसके लिए स्पेशल परमिशन लगती है। तो गायत्री मंत्र वगैरह है। तो राम नाम जो है वो लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। और रूल्स तो मतलब कैसे है कि तुम अच्छे से, मतलब बेसिक रूल्स माइंड में रखो कि माला को संभाल के रखना। अगर आप माला जाप कर रहे हो तो यू नो शुड बी इन द राइट प्लेस, एंड थोड़ी सैंक्टिटी मतलब सीक्रेटनेस मेंटेन करना है वाइल डूइंग द जाप। हो सके उतना फोकस करना है वाइल डूइंग द जाप। ऐसे नहीं कि तुम हाथ में कर रहे हो और चार जगह देख रहे हो, तो वो नहीं होगा। yes, ma'am. We'll just finish the quick rapid fire यस। segments I have created. This is which I have prepared. Rest everything was just questions. अगर आप आपके बच्चों को कोई एक ह्यूमन वैल्यू सिखा पाए तो वो कौन सी चीज होगी और क्यों? बच्चों को कोई एक चीज सिखा पाए तो ग्रैटिट्यूड। रैपिड फायर है ना? ठीक है, रैपिड ग्रैटिट्यूड। रैपिड फायर ग्रैटिट्यूड। सोचना नहीं है। यस। इन शब्दों को सुनकर आप क्या सोचते हो? एक वर्ड, वन वर्ड फॉर वन वर्ड। कृष्ण। लव। प्यार। यूनिवर्स। स्पिरिचुअलिटी। कृष्णा। कथा। माय सन, बिकॉज आई लाइक टू टेल हिम स्टोरीज। राइट। एंड डिम्पल। कथा मीन्स यू टॉकिंग अबाउट स्टोरी, राइट? कथा मीन्स जो होती है लाइक भगवत कथा। हाँ, तो मैं उसको ये सब कथा आजकल बहुत सुनाती हूँ, तो मुझे उसकी याद आ गई उस टाइम पे। राइट। एंड डिम्पल लाइक डिम्पल इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। आई ऑल्सो डोंट नो हु इज डिम्पल एनीमोर। सो हु वी आर। हम क्यों है और हम क्यों आए? जस्ट लेट। तो बड़ा सवाल कर लिया आपने। हु वी आर। यस, हु वी आर एंड क्या हमारा पर्पस है? हु वी आर इज समथिंग दैट आई थिंक एवरी पर्सन हैज टू फाइंड आउट ऑन इट्स ओन। अगर मैं राइट। उसका जवाब दे दूं तो फिर वो बोलते हैं ना कि फिर वो बुकिश आंसर हो जाएगा। इट्स हु वी आर इज आई थिंक अ जर्नी which everybody has to take within themselves to find out कि यार मैं कौन हूँ। खुद समझने की कोशिश करो, और वो तुम कैसे समझ सकते हो उसके मैं थोड़ी टिप्स दे सकती हूँ कि ओके। तो एंड यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ इन रिलेशन विथ अदर्स। दैट इज द बेस्ट वे। कि तुम देखो कि किसी के साथ जब तुम इंटरैक्ट करते हो, तुम किस तरह से इंटरैक्ट करते हो। बच्चों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो, बड़ों के साथ कैसे करते हो, कोई ओहदे में बड़ा है तो उसके साथ कैसे करते हो, कोई ओहदे में छोटा है तो उसके साथ कैसे करते हो। हाउ यू बिहेव, ऑब्जर्व योर ओन बिहेवियर, एंड दैट विल टेल यू हु यू आर। ऑब्जर्व योर ओन थॉट्स, ऑब्जर्व योर ओन इमोशंस, तो तुमको पता चलेगा तुम कौन हो। और जैसे तुम देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे, यू विल गेट टू द रूट ऑफ इट।
वैसी बात है। तो आई थिंक इट्स अ जर्नी व्हिच एवरीबॉडी हैज टू टेक टू फाइंड आउट कि हू दे आर। बिकॉज़ हम जो बोलते हैं हू वी आर, क्या बता दोगे तुम? तुम्हारा नाम बता दोगे? नाम किसी ने दिया हुआ है। क्या बता दोगे मैं इस कंट्री से हूँ? क्या होता है वो? Your name, your career, what you are doing, that is not you. Those are all temporary things, isn't it? Your family, your life, your career, all those are temporary. Who are you from within? वो ढूंढना है ना सबको। सबके पास नाम है, सभी कोई कंट्री से, उससे क्या हो जाएगा? राइट, एग्जैक्टली। बिकॉज आई थिंक नाम भी एक इम्पैक्ट डालता है। सपोज योर नाम, आपका नाम आपकी आइडेंटिटी हो जाता है, बिकॉज एवरीवन कॉल्स यू विथ योर नेम, आई गेस। हम्म। सो आपका नाम भी सोच समझ कर रखना चाहिए, आई गेस, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी बन जाती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नाम तो अच्छा सुंदर ही रखना चाहिए, सभी लोग बुला रहे हैं तो। राइट। हाँ। आपके 3 फेवरेट भगवान कौन है और क्यों? मेरे फेवरेट भगवान जो है वो बचपन से लेके अब तक काफी बार चेंज हो चुके हैं, मैं बता दूं। अ, बचपन में गणपति मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर कृष्ण से ज्यादा प्रेम हो गया। फिर कभी मुझे राम भगवान से ज्यादा प्रेम हो जाता है। कभी जीसस से ज्यादा प्रेम हो जाता है। फिर तो मैं क्या बताऊं, मतलब फिलहाल ये 3-4 है जो मैं बता सकती हूँ मेरे फेवरेट है। ग्रेट, ग्रेट। है तो सारे एक ही, अलग अलग अवतार है, उनके अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है। तो सभी में एक ही दिखते हैं, पर कोई अवतार ज्यादा अच्छा लग जाता है कभी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एक डे ऑफ पे आप क्या करते हो? क्या करना पसंद करते हो? कोई भी एक डे ऑफ हुआ तो व्हाट डू यू डू इन? डे ऑफ, व्हाट डू आई डू? आई फर्स्ट लिसन टू माई हार्ट। ऐसी फिक्स्ड चीज नहीं है आज क्या मन कर रहा है मेरा करने की, आज छुट्टी है। वो हर दिन अलग होता है ना। कोई दिन अगर बहुत थकान है तो भाई आज के दिन बहुत थकान है तो आज दिन आराम कर लेती हूँ। कोई दिन बहुत एनर्जी है तो बच्चे को लेके जू चले गए घूमने के लिए। कोई दिन मन कर रहा है कि नहीं कुछ मंदिर जाना है, कुछ पाठ पूजा करना है, तो वो कर लिया। तो उस दिन, जो जिस दिन डे ऑफ है, आई विल कनेक्ट विथ माई सेल्फ एंड आस्क माई सेल्फ व्हाट डू यू वांट टू डू। अगर पेंडिंग टास्क है तो ऑब्वियसली पहले वो करो, अर्जेंट टास्क है तो। नहीं है तो आई आस्क माई सेल्फ, आई सिट विथ माई सेल्फ, व्हाट डू आई फील लाइक डूइंग, एंड देन आई डू दैट। वंडरफुल, वंडरफुल। What do you watch on YouTube and which type of content? वो Like मेरा particular, एकदम सीक्रेट कंटेंट है। particular content, कोई भी। आह, अभी आपसे पॉडकास्ट होने के जस्ट पहले मैं रामकृष्ण परमहंस का बारे में श्री एम का वीडियो देख रही थी। तो आई वुड से दैट इट्स मोस्टली रिलेटेड टू वेदांत दैट आई वॉच। स्वामी सर्वप्रियानंद जी के भी काफी वीडियोस देखे हैं। क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड बहुत वीडियोस देखे हैं। हाउ द यूनिवर्स फंक्शंस उससे बहुत रिलेटेड देखे हैं। अभी ऑफ लेट स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काफी देख रही हूँ। वैसा है, मैं जनरली मूवीज नहीं देखती हूँ, मैं यूट्यूब पे ही ज्यादातर रहती हूँ। वैसा है मेरा। वंडरफुल, वंडरफुल। एंड डू यू बिलीव कि भगवान सही टाइम पे सही चीजें करते हैं? हाँ हाँ, कोई भी चीज सही का टाइम पे नहीं, पूरा टाइम पे सही चीजें करते हैं, पूरा टाइम। 1 मिनट भी है ना कि उन्होंने सही काम नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो भगवान है ना, वो तो पूरा टाइम ही सही काम कर रहे हैं। हम उसको सही या गलत मानते हैं कि भाई ये सही नहीं हुआ वो गलत हुआ, पर उनके नजर में सब सही हो रहा है। राइट, अगर वो जो कुछ भी बुरा भी गलत कर भी रहे हैं होता है तो अपने अच्छे तो के लिए बुरा कर रहे राइट, एग्जैक्टली। मतलब जो गलत भी होता है तो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब राइट। हम गलत सिचुएशन में होते हैं तब हम थोड़ा लगता है कि यार क्या हो गया, क्या ये हो क्या हो रहा गया? है मेरे साथ, हे भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ। तब लगता राइट, है, बट अगर तुम 1 मिनट पॉज करके सोचो कि भाई हाँ कुछ बुरा हो रहा है, शायद भगवान कुछ मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी चीजें ना घूम फिर के तुम्हारा कितना भरोसा है भगवान पर, उस पर आ जाती है सारी चीजें घूम फिर के। हाउ वेल डू यू ट्रस्ट हिम। अगर if तुमको पूरा भरोसा है तो तुम्हारे साथ कुछ भी होगा ना, तुम सोचो कि हाँ भगवान ने कुछ अच्छे के लिए ही किया है।
तो तुम वैसा सोचोगे, तुम्हारे दिमाग से टेंशन वैसे ही चला जाएगा। और ऐसे ही होता है, अगर कोई रास्ता तुम्हारा बंद हो गया, कोई दरवाजा बंद हो गया, तो उसका मतलब ये है कि भगवान तुम्हें और बड़े दरवाजे के पास लेके जा रहे हैं, और होता यही है। तब तुमको डर लग रहा है, तुमको बुरा लग रहा है, बट ठीक है, बट ही इज रीडायरेक्टिंग यू टू अ बेटर सिचुएशन, टू बेटर पीपल। Exactly. So when you get that realization in the middle of suffering, automatically the suffering goes away. Right. Basically. Exactly. सबसे अंडररेटेड स्क्रिप्चर कौन सा है? Underrated scripture, Yes. Which is the most underrated scripture? I think तत्वबोध। तत्वबोध करके एक वेदांत का ग्रंथ Okay. है। बहुत सुंदर है, मतलब उसमें शंकराचार्य जी ने लिखा है। उसमें अपने बॉडी के बारे में बताते हैं, जो सटल बॉडी, हमको क्या बायोलॉजी सिखाया है ना, ये हार्ट, ये लंग्स, ये लिवर, ये किडनी, है ना। तो तत्वबोध जो है वो तुमको बताता है कि भाई एक्चुअल तुम्हारी बॉडी खाली ग्रोथ से नहीं बनी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सटल बॉडी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉजल बॉडी। जो चीजें तुमको दिखाई नहीं देती है, वो उसमें क्या होता है और वो क्यों होता है और वो किस तरह से काम करता है। तुम्हारा मन, बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा ईगो किस तरह से काम करता है, किसके साथ मिलके काम करता है, तुम्हारी आत्मा क्या है, किस चीज से तुम बने हो, पंच तत्व से बने हो, तुम्हारे 3 गुण जो है रज्व सत्व। तो बेसिकली इट इज अ साइंस ऑफ द सेल्फ। I think that is something everybody needs to know, and I think it's really underrated तत्वबोध। और मैं जो मेरा वेदांत कोर्स अभी करने वाली हूँ ये महीने में, मैं तत्वबोध को लेकर ही कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ। तब जाके तो Exactly. तुम आगे कुछ कर पाओगे। दैट इज द बेसिक्स। Exactly. सो आई वुड से तत्वबोध, या। Okay. Exactly. अगर आपको जिंदगी भर एक ही कलर पहनना पड़ेगा तो वो आप कौन सा पहनोगे और क्यों? I would go with white or yellow because I like those colors. Okay, white and yellow. I just forgot to mention white and yellow are exceptions. You can वो अलाउड choose. नहीं है? नहीं, white or black. I just forgot to mention. Okay, purple. Okay, and why? Because this is Uh, आई डोंट नो, आई लाइक पर्पल कलर। और मैंने देखा है, मैं जब भी मेडिटेट करती हूँ मुझे पर्पल कलर ज्यादा दिखाई देता है, शायद मे बी दैट्स व्हाई आई सेड पर्पल, एंड आई लाइक इट, लुक्स गुड ऑन मी। exactly. I think every color looks good on you. And थैंक यू। मैंने ये ऐसा भी सुना है कि लोग जो लोग बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, जैसे साधु और ये लोग, तो उनको हर जगह पे भगवान ही दिखते हैं। सो यस, इज इट? हाँ, तो दिखेंगे ही ना, क्योंकि बिकॉज है दे सब जगह पे। क्योंकि आर सब जगह पे भगवान है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उनको दिख रहा है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान नहीं है हर जगह। आप बता दो मुझे कौन सी जगह नहीं है। राइट, हर जगह है। बिकॉज हमको नहीं राइट, दिख रहा है, उनको दिखने लग गया है, क्योंकि उन्होंने इतना तप किया है। भगवान तो है ही राइट, हर जगह, हमारे में है, आप में है, जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ उनमें है ना। हर चीजों में है, कुदरत में है, कहाँ नहीं है। बस हमने एक्सेप्ट, बाकी इतना हम मटेरियलिज्म में घुस गए हैं, पैसों में, दुनियादारी में, फेम में, कि हमको फिर जो असली चीज है वो नहीं दिखाई दे रही। तो जो राइट, तप कर रहा है उसको वो फिर धीरे धीरे जो इल्यूजन्स है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के, वो गिर जाते हैं, वो पर्दे पर्देफाश हो जाते हैं, और वो असली चीज फिर उनको दिखाई देती है। राइट। और मेरा सेंस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड पहले व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन स्पिरिचुअलिटी, बट लाइक 3 साल से लाइक आई एम इनटू मेडिटेशन एंड दिस I've रियली। experienced that thing, means I've experienced that thing कि सच में मतलब like it really helps a lot. You tell me about your journey. How did it start then? Like actually teen means जब college days I used to look down upon such things कि why spirituality, why means I never used to get answers on this कि क्यों करना है, क्या करना है, but 3 साल से आई एम सो मच इन टू दिस दैट आई फील सो कनेक्टेड, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है इस चीज से। वेन एवर आई डू लाइक
meditation and all, I feel so much connected to this world, like spiritual राइट। world. और इससे मेरे लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए। बहुत तो बढ़िया, बहुत अच्छा है फिर तो। आप क्या अगर मैसेज देना चाहोगे? मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे कि मेरे जैसे भी लोग होंगे जो लाइक पहले कि दे डू नॉट बिलीव इन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, तो उन्हें कैसे हेल्प करेगी ये चीज, स्पिरिचुअलिटी? थोड़ा देखो डीप में। स्पिरिचुअलिटी, हाँ स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है कि तुम किसी को समझा के उसमें ला नहीं सकते। तुम राइट। किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई नहीं तू आ मेरे साथ मंदिर में, तेरे को बताता हूँ कितना फायदा होता है, नहीं तू कर जाप देख कितना फर्क पड़ता है। इट इज नॉट समथिंग यू कैन एनफोर्स समबडी। राइट। spirituality is something which comes naturally and it comes with God's grace। अगर भगवान की इच्छा होगी ना, तो ही तुम्हारा मन होगा मंदिर जाने का, तो ही तुम्हारा मन होगा जाप करने का, तो ही तुम्हारा मन होगा मेडिटेट। उनकी इच्छा से ही होती है स्पिरिचुअलिटी भी, क्योंकि हर चीज उसी की इच्छा से होती है। वो राइट। तुम्हारे कर्म देख के ही तुमको बुलाएगा, चलो आ जाओ अब मेरे पास थोड़ा ध्यान करो मेरे साथ। वही बुलाता है, और फिर तुम ओके। पूछते हो साथ दूसरे लोगों को। वैसी बात है। ओके। ये सब ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है, इफ गॉड वांट। देन ओनली ओके। यू कैन कम इनटू दिस, ओ। अदरवाइज यू कैन। वो सिचुएशन ही तुम्हारे में सफरिंग प्रॉब्लम्स इतने डाल देगा कि वो डालते हैं इसके लिए भाई कि यार तू तो मुझे भूल गया, तेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, थोड़े प्रॉब्लम डालोगे तो तू आएगा मेरे पास, वरना भूल जाएगा मुझे। वैसी बात है। ओ। राइट, राइट, एग्जैक्टली। सो मोस्ट फेवरेट डिश? मोस्ट फेवरेट डिश, ओ माय गॉड माय आंसर इज एम्बैरसिंग। Anything, anything it could be. It's not whatever. माय आंसर इज एम्बैरसिंग। आई एम सच अ सिंपल पर्सन, मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, पर मुझे दाल खिचड़ी बहुत पसंद है। Oh, it's really oh, अच्छे से गरम गरम खिचड़ी में घी डाल के खाओ। oh, it's very yummy. That is my soul food. I also like curd rice. Um, but yeah, nobody generally, people generally laugh at these options. But yeah, I love this kind of Really food. like. I also like घर का खाना। ये सबसे फेवरेट है, मुझे Yes. भी घर का खाना, चपाती यही पसंद है। It's really healthy. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भी पिज्जा पास्ता खाती हूँ, कभी कभी मन हो जाता है। बट इफ यू आस्क माय फेवरेट, इट इज ऑलवेज दाल खिचड़ी और कर्ड राइस। या Wow. Even I like homemade food. It is the best thing. आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है and everything balances equally. When तो did you fear the most in life and उससे कैसे डील किया? व्हेन डिड यू? फियर, सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा आपकी लाइफ में, और उससे कैसे आपने डील किया? सबसे ज्यादा डर कब लगा? अब मुझे इतना तो दूर का याद नहीं है, बट मैं एक रीसेंट इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं अभी काफी सोलो ट्रैवल करने लग गई हूँ। तो मैं अभी अरुणाचल गई थी, तो मैं जहाँ रुकी थी ना, अ, जिस घर में, तो वो ऊपर छत वाला रूम दिया था मुझे उसने। तो छत वाला रूम था, और फिर दरवाजा खोलो तो पूरा छत था, ओपन टेरेस, और फिर उसके एंड में वॉशरूम था। तो दिन में तो ठीक है मैं चली जाती थी वॉशरूम, कभी कभी रात को 2 बजे 3 बजे अगर जाना पड़े, तो पूरा अंधेरा है, तुमको पूरा टेरेस क्रॉस करके जाना है, तो आई वाज रियली स्कैर्ड, आई वाज ट्रैवलिंग अलोन। तो पहली रात तो मुझे काफी मुश्किल हुई, मैंने फिर भी हिम्मत करके गई मैं, क्योंकि जाना तो है ही। फिर मैंने रियलाइज किया, सोचा थोड़ा बैठ के, यार वो डर को आने दिया, दिन में सुबह में डर को आने दिया कि मुझे किस बात का डर लग रहा है, वो फियर को दबाया नहीं मैंने, आने दिया। थोड़ा मुझे अनईजीनेस फील हुआ, थोड़ा शायद मैं रोई भी, और आधा घंटा शायद लगा मुझे, बट आई लेट दोज इमोशंस